हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज दो हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो ज़्यादा लर्निंग कंटेंट में यहाँ पे दे नहीं दूंगा, बिकॉज आई जस्ट बीन वैक्सीनेटेड लाइक यस्टरडे द सेकंड डोज। द एनर्जी इज रियली लो, बट व्हाट विल do is basically give some guidance that how market can behave this week. First of all guys, पहली चीज तो ये याद रखना कि आई डोंट थिंक दिस वीक मार्केट इज फॉर ऑप्शन बायर्स. Like last week we had the market for option buyers, right? We got two jackpots both in Nifty and Bank Nifty. We could not capture like 100%, but we at least captured 40% of the move. But and in multiple instances, right? ये वीक जो लगता है मेरे को, आई डोंट थिंक दिस वीक बिलोंग्स टू ऑप्शन बायर्स. लाइक हेवी मनी जैकपॉट टाइप मिलेगा नहीं आपको, तो इंट्राडे में ही प्ले करने की कोशिश करेंगे. एंड अगर चलो पॉजिटिव आई एम नॉट पॉजिटिव, आई विल गिव यू सिनेरियोस व्हेन वी आर गोइंग टू स्टे पॉजिटिव. बाकी मार्केट जो दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है कि मंडे इट लुक्स लाइक ए ग्रीन कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज बेस्ड ऑन टाइमिंग. आई एम सेइंग Monday it looks like a green candle, Tuesday it looks like a red candle, Wednesday and Thursday a dozy kind of candle. Though the downside is ideally on the first half, and in the second half we can see recovery both on Wednesday and Thursday and Friday. 13th, I think Friday is 13th we see a red candle, good red candle, whereas the recovery is also on the second hard side, the way it happened this Friday. Okay, जैसे हमें मॉर्निंग में आज जैसे लोगों को मैंने जो लेवल दिया था फ्राइडे को, एग्जैक्टली ऐसे बहुत कम बार होता है कि एग्जैक्टली एट द सेम लेवल बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड गिव यू अ गुड मूव, राइट? जो हमने लेवल दिया था आपको, अगर याद होगा, यूट्यूब में दिया था कम्युनिटी टैब में, तो एग्जैक्टली सेम लेवल है, डॉट टच एंड सेल काइंड ऑफ सेल था. nobody probably can give you a better view based on that in intraday trading. But anyway, that's Friday. Review हम Friday का नहीं करेंगे. People know that how fantastic we have done on a Friday. We took two trades. One is the confident sell. The second one is just scalping in between. And last moment में buying आई थी. It is the last after 3 o'clock. It doesn't make sense to trade anyway. So that was the review for Friday. Next week जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से दीजिए, याद रखिएगा. Monday, it looks like a positive move for trapping the bulls. Tuesday, it looks like a similar kind of move, but on the opposite side, red candle. Wednesday, Thursday, first half may fall and second half may recovery. Friday also same, but Friday may first half ka fall is a little bit furious. That means what we are saying, mota mota we are saying कि market will consolidate in this zone. Okay. और अगर फ्राइडे को बड़ा फॉल हो जाता है तो वी माइट सी बैंक निफ्टी एट 34,900 लेवल. 34,900 is where, yeah, around this level. Can you see this level? 35,000 आप ले लो, around this level. Okay, around this level. अगर फ्राइडे का फॉल बड़ा होता है तो दैट मीन्स व्यू हमारा क्या रहेगा? व्यू हमारा सेल ऑन राइज का रहेगा ये वीक का. ओके, सेकेंड हाफ में, स्पेशली सेकेंड हाफ में अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो व्यूज हमारा पूरा वीक में सेल ऑन राइज का रहेगा, एक्सेप्ट मंडे is a little bit confusing to me and it looks like Monday it can trap the bears. मतलब bull side जाएगा, it will make a double top and then it will start falling Wednesday, Thursday, Friday, Tuesday से start करके. That's what it looks like. Market doesn't look like going beyond, especially Bank Nifty going beyond 36,220. ये जो level हमारा था जिसमें से we got a wonderful sell. Even if you look at this is a touch and sell, positional की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर मार्केट गया नहीं. हाँ, एक चीज थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर नेक्स्ट डे ये इसके ऊपर ओपन करता तो हमारी सेल लेवल यहाँ पे थी 37,062. ये ब्लैक लेवल आप रखिए, ये कभी ना कभी काम आएगा, बट नॉट नाउ. फॉर नेक्स्ट वीक आई थिंक दिस लेवल एज ए डबल टॉप इज गोइंग टू एक्ट एज ए डबल टॉप एंड द फॉल. सो मंडे जो एडवाइस है, मंडे आपको बड़ा सेल नहीं लेना है. इंट्राडे में आप स्कैल्पिंग ले सकते हो, but Monday I would still stay on the positive side. Full day, I'm talking about full day.
एंड आइदर मंडे एंड ऑफ द डे और ट्यूसडे मॉर्निंग के बाद आप सेल करना चालू कर सकते हो व्हेन वी सी रिजेक्शन. दैट मीन्स मेरा पर्सनल व्यू जो है, बैंक निफ्टी शुड नॉट गो बियॉन्ड 36,200 300 इन दिस एंटायर वीक. एंड स्पेशली अगर मंडे ग्रीन भी बनता है एंड ट्यूसडे इट मेक्स ए रेड कैंडल गाइस. हम अर्ली साइन की बात करते हैं जनरली ऑन मंडे, बट मंडे दिस अर्ली साइन कैन ट्रैप. जैसे आपको ये मंडे में एक बार अर्ली साइन ट्रैप किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, रेड बनाया देन इट इज ऑल ग्रीन. So similar kind of early sign that we'll get in this Monday also, I think. So Monday could be a green and then rest of the candles could be red. Okay. So this Monday early sign will not consider it as an early sign. We'll wait for Tuesday. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि my view can be wrong, but Tuesday को अगर market green बना देता है और स्पेशली इस लेवल के ऊपर चला जाता है 36,220 के आसपास ऊपर चला जाता है, तो इट कैन फ्लाई. मतलब इन 1 or 2 days maximum it might give you a 800 point move. But looking at the bank's conditions, looking at SDFC Bank, Kotak, I'll go to the stocks also. I don't think that we can see a bull run this week. That is my view. Okay, so the target for is, if you're going for a sell on Monday, guys, your stop loss should be around 36,300 spot. Okay, you can go for a sell, but that stop loss should be there, strict stop loss. Now that was मोटा view. The मोटा view जो है वो आपका निफ्टी के लिए भी सेम है. मैं खाली लेवल वहां पे दिखाता हूँ. जो वीकली लेवल मैं आपको दे रहा हूँ बैंक निफ्टी में फ्राइडे तक, दैट माइट बी 34,900. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए मंडे अगर मार्केट ग्रीन क्लोज भी कर देता है, वी आर टॉकिंग अबाउट ए 1200 पॉइंट फॉल इन 3 to 4 days बैंक निफ्टी में. ओके, माय व्यू इज सेल ऑन राइज नेक्स्ट वीक. ओके, आई विल कम टू मंडे ट्रेडिंग. निफ्टी का भी सेम है, सेल ऑन राइज का व्यू है. निफ्टी में खाली लर्निंग पर्पस में मैं आई विल ऐड जस्ट वन थिंग दैट यू गाइस प्रोबेबली नीड टू रिमेंबर, एंड दैट वन थिंग इज आइडियली when Nifty was consolidating here, guys, right? This is a breakout ideally. If you look at this is a breakout, this is a monthly breakout, and Nifty has given a breakout, wonderful breakout. And I told you one level 16,060 का लेवल मैंने दिया था पहले भी आपको, और मैंने बोला था जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा मार्केट तब तक पॉजिटिव है. Now a lot of people will say is Nifty going to test the 15,960 का level or not, because this was the breakout level, right? It may not. जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी में टारगेट दिया फ्राइडे तक का 34,900 का, निफ्टी में द टारगेट इज 16,040. ओके, ये 60 का लेवल है, 20 पॉइंट और नीचे है. ये 16,040 अगर निफ्टी कभी आया तो यू कैन गो फॉर ए ब्लाइंड बाइंग. अब यू डोंट नीड टू वेट फॉर 964. ये इसको टच नहीं करेगा. इट माइट टच एट ए लेटर स्टेज बट नॉट दिस वीक. 16,040 का अगर लेवल निफ्टी कभी भी टच करता है, इट कैन गिव यू 100 पॉइंट्स बाइंग इजिली. ओके, तो 100 पॉइंट की बाइंग आप ले सकते हो. उसको ध्यान में रखना, वीकली कभी भी आ जाता है. बट अगर निफ्टी में भी हम लोग सेम व्यू लें, आई डोंट थिंक निफ्टी विल क्रॉस दिस वीक्स हाई विच इज 16,350. मार्केट अगर कल देखो ग्रीन भी क्लोज करता है ना, ठीक है, और ट्यूसडे रेड बनाना चालू करता है, जो मैंने बैंक निफ्टी में बोला, तब भी आई वुड स्टिल लुक निफ्टी टुवर्ड्स डाउन साइड ओनली. ओके, सो व्यू इज स्टिल सेल ऑन राइज फॉर निफ्टी ऑल्सो. रिलायंस एचडीएफसी का स्टॉक भी हम देखेंगे. सो डाउन साइड टारगेट इज 16,060. अपर साइड टारगेट इज दिस वीक्स हाई 16,350. ज्यादा से ज्यादा 30 पॉइंट्स आप और ले लो, 16,380 के आसपास, नॉट मोर देन दैट. ओके, सो दैट वुड बी द व्यू फॉर अस. मंडे कोई पोजिशनल ट्रेड चालू नहीं करना. ट्यूसडे यू कैन ट्राई, एंड इफ यू आर इन प्रॉफिट यू कैन कन्वर्ट दैट इंट्राडे ट्रेड टू पोजिशनल. दैट वुड बी माय व्यू. ओके, सो कमिंग टू द स्टॉक्स, बिफोर गोइंग टू मंडे वाला ट्रेडिंग, स्टॉक्स हम एक बार देख लेते हैं. थोड़ा फास्ट करूंगा, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा. सो एचडीएफसी बैंक देखो, अगर आप लोगों को याद होगा जब यहाँ पे 14,000 लेवल पे था, मैंने आपको बोला था जब ये कैंडल बन रही थी, मैंने बोला 1390 पे हमारी बाइंग थी. मैंने बोला था शायद हम ये बुल रन मिस कर देंगे क्या. तो मैंने बोला था अगर आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस झेल सकते हो तो आप बाय कर सकते हो. तो मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था लोगों को कि 1380 के स्टॉप लॉस के साथ यू बाय फ्रॉम दिस लेवल विच इज अराउंड 14,005 के आसपास था.
So 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड आई वेरी क्लियरली टोल्ड देम 100 पॉइंट का मिनिमम लॉन्ग लेना है आपको. Okay, 100 point का minimum lock, and if you look at it, it has given exactly 105 points long, and that too in just 3 days. So that is our target. Target is done. I am expecting HDFC Bank to be consolidated. Okay, Kotak Bank is also same. I want Kotak Bank also to be consolidated. We will wait for Monday one. Then if there are view changes, तो मैं view change कर दूंगा. Otherwise, देखो ऊपर तो नहीं जाएगा HDFC and Kotak. That's what I am thinking. या तो कंसोलिडेट करेगा या एटलीस्ट 30 to 40% ये मूव का रिट्रेसमेंट करेगा, एंड दैट 40% रिट्रेसमेंट इटसेल्फ विल ब्रिंग बैंक निफ्टी टू एटलीस्ट 35,000 का लेवल. ओके, सो दैट इज व्हाट द व्यू इज आइडियली. ICICI बैंक इज ऑलरेडी वीक, आई थिंक. या इट इज ऑलरेडी वीक. ये गैप अप जाएगा तो भी सेल बनेगा. एक्सिस बैंक इज सुपर वीक. ओके, खाली वॉल्यूम में नहीं देखा हूं, देख लेना एक बार, बट एक्सिस बैंक लुक्स वीक. ओके, तो ये कंसोलिडेट करेगा या फिर ये जितना मूव यहाँ तक दिया है ना, ये पूरा का पूरा नेगेट कर जाएगा एक्सिस बैंक. ओके, SBI इज ऑल्सो वीक. ये बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, इट्स ए सुपर वीक कैंडल. डोंट पुट मनी ऑन SBI इन राइट नाउ. ओके, एक मंडे को एक झटका मार सकता है ऊपर साइड, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बट उसके बाद नहीं. द ओनली बैंक विच लुक स्ट्रॉन्ग टू मी इज आइडियली इंडसइंड बैंक. ओके, and other than that, all other private banks looks to me consolidated to weak. Okay, एक jerk reaction दे सकते हैं मंडे को to trap the bears, otherwise they are weak. Okay, Reliance अगर हम देखेंगे, इंडसइंड बैंक पॉजिटिव है, उसको थोड़ा इग्नोर मत करना. मंडे को वीक हो गया तो अलग बात है, वो देखेंगे. देखो, दिस इज द एंटायरली bearish engulfing कैंडल, दो कैंडल एनगल्फ किया है. So I'll not put my money on the buy side for Reliance, of course. HDFC is falling from top. So that means even if it goes a little bit, it will make a double top and fall again. Okay. So I'm not also extra bull on HDFC. So mota guys, sell on rise का view है. Can this view go entirely wrong? Yes, it can go entirely wrong. अगर इसको wrong जाना होगा तो Tuesday हमको बता देगा. That means Monday अगर market positive close करता है, Tuesday को gap up कर देता है, तो ये पूरा व्यू हमारा नेगेट हो जाएगा. वी विल गो फॉर अनदर बुल रन फॉर द एंटायर वीक. बट लुकिंग एट टाइमिंग, एस्ट्रो कैलकुलेशंस, प्राइस एक्शन, आई डोंट थिंक हमें बड़ा बुल रन ये उतना मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज मोटा व्यू गाइस. मैं कल का ट्रेडिंग दे देता हूँ आपको, हाउ वी शुड ट्रेड टुमारो. सो टुमारो इफ मार्केट, वी डोंट नो, ग्लोबल मार्केट एक बार देखते हैं ना. या नॉट नेगेटिव, सो आई डोंट नो वेदर दे विल ओपन पॉजिटिव और नेगेटिव. But what we can see is probably market अगर gap down होता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो कल आपकी जो बाइंग लेवल रहेगी वो थोड़ा सा नीचे रहेगी. ये 223 लेवल से हमने बाइंग ऑलरेडी ले लिया है ये वाला. तो जो आपकी बाइंग लेवल रहेगी वो जोन रहेगी, एक जोन रहेगी आपकी, और ये 16,175 से 190 का ये जो जोन है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट ये मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा बाद में to take a trade even if I want to take. Okay, जोन थोड़ा बड़ा है, बड़ा मतलब 20 पॉइंट्स का ही जोन है. ओके, एंड ये देखो, ये जो डे की वीकली जो हाई है ना 350, ये कभी जाएगा नहीं. तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ तक वेट करने की जरूरत है सेल के लिए. ये सेल कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एक्चुअली, यहाँ पे जो जोन है, ठीक है, लिटिल बिट ऑन द अपर साइड रादर देन डाउन साइड. ये वाला जोन आपको आइडियली मिलेगा सेल का. ठीक है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए लेवल ऑफ 16,300 टू 315, 15 पॉइंट का जोन है. तो 16,300 आप मोटा ले लो, 300 टू 320. यहाँ पे अगर मार्केट जाता है तो आइडियली एक सेल बनता है. बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज मंडे बड़ा सेल मत करना. ओके, ट्यूसडे करते हैं. मंडे पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट बेसिकली या तो ऊपर जाए, वोलाटिलिटी करे, नीचे आए और फिर इस तरह इसके आसपास क्लोज करे और ट्यूसडे फॉल होना चालू हो जाए. या फिर द अदर वेज मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये अपर साइड यहाँ तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 16,290 300 के आसपास जाएगा, यहाँ पे क्लोज कर देगा और फिर ट्यूसडे इट विल स्टार्ट मेकिंग द फॉल. लेट्स सी ओपनिंग कहाँ पे होता है. दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, मंडे जनरली बाय ऑन डिप्स में आपको रहना चाहिए आइडियली. और इजी चीज ये होगा कि मंडे अगर गैप डाउन कर जाए या फ्लैट ओपनिंग हो के मॉर्निंग में नीचे आए, ठीक है, तो ये लेवल पे आप बाइंग कर सकते हो. इससे पहले बाइंग आएगी क्या, आ सकती है, आई डोंट नो, बट दिस इज ए
गुड लेवल टू बाय, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो मंडे देखो ओपनिंग कहाँ पे होता है। मंडे अगर नीचे ओपनिंग होता है गो फॉर ए बाय। मंडे अगर ऊपर ओपनिंग होता है, गैप अप ओपन हो जाता है, देन वेट। वेट मतलब मार्केट या तो यहाँ से रिएक्ट करेगा, फिर आपको पिवट से बाय करना है। 16,260 के आसपास बाय कर, वहां से बाय कर सकते हो, जाएगा ऊपर ही है, ठीक है। फिर ट्यूसडे को नीचे गिरेगा। सो यहाँ पे बाइंग आपको कम मिलेगी। नीचे साइड आया तो मंडे शायद एक अल्ट्रा बुल रन आपको मिल जाए, मतलब 200, सॉरी ये जोन हमने गलत, सॉरी ये जोन हमने गलत बनाया, 15,000, ये जोन हमने गलत बनाया, सॉरी 15,200 से लेके 205, ठीक है, 5 पॉइंट का जोन है। तो 200 ले लो, 16,195 से 200 का लेवल जो है, ये 200 के लेवल से आप इजीली बाय अप टू 50 to 60 पॉइंट इजीली ले सकते हो। उसके बाद रेस्ट इज बोनस, इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। बट ये बाय, ये एक परफेक्ट बाय हमारी होगी। दूसरी एक जो बाय होगी वो यहाँ से होगी, अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन करता है तो यहाँ से होगी 260 से 300 के आसपास, 40 पॉइंट्स का। ये दो ट्रेड शायद हमको अच्छे मिल सकते हैं कल, अदरवाइज आई एम नॉट इन ए बिग सेल फॉर टुमारो, अनलेस मार्केट जोश में गैप अप हो गया और सीधा वीकली हाई के आसपास पहुंच गया 350 के आसपास, फिर तो यहाँ पे ब्लाइंड सेल है आपका कल। दिस इज द थर्ड ट्रेड दैट वी आर गोइंग टू टेक। ओके, बाकी और कुछ ट्रेड नहीं करना है, बाकी देखेंगे लाइव में, अगर मैं कुछ बता सकता हूँ तो बताऊंगा। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में तो ये लेवल मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, यहाँ जाएगा तो बैंक निफ्टी को ठोक देना है। ये लेवल 36,215 अगर कभी दोबारा पहुंचा तो हमें बेसिकली आइडियली सेल करना है। बट कल हमारी जो एक डिपेंडिंग अपन द ओपनिंग, अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन कर जाता है 36,020 विच इज लाइक ए 200 पॉइंट गैप अप, अगर हो जाता है तो कल सेल मत करना, वेट करो, या बाय कर सकते हो, कल मॉर्निंग में भी बाय कर सकते हो। मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन हो गया गाइस, आप बाय कर सकते हो। मार्केट यहाँ तक आएगा पक्का, ये ब्लैक लेवल तक आएगा दोबारा 36,200। कंडीशन क्या है, 200 पॉइंट की गैप अप करे। 200 पॉइंट का अगर गैप अप मार्केट करता है, इट विल गो अनदर 200 पॉइंट इजीली। ओके, तो मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है, पहले 5 मिनट में ही, आपको 10 मिनट वेट करना है वैसे तो, पहले 5 मिनट में ही मार्केट नीचे आ जाता है और ये मंथली हाई के नीचे आ जाता है, 985 के नीचे अगर आ जाता है, फिर बाय मत नहीं करना है, फिर आप गो फॉर ए सेल करो पिवट तक, फिर पिवट से बाय करना, ठीक है। पिवट से ये रिएक्शन देगा, 100% रिएक्शन देगा। 35,860 से आप बाय करोगे, फिर उसको दिन भर लंबा रखने का। मंडे बाय ऑन डिप से याद रखना, ओके, सेल ऑन राइज नहीं है। एक सेल खाली मैं दे रहा हूं, अगर ये 5 मिनट में गैप अप हो गया, 5 मिनट में नीचे आ गया, so it's basically from a buyer seller psychology point of view, the seller will become very very heavy in first 5 minutes। अगर ये heavy हो गए, ठीक है, तो ये बहुत इजी चांसेस है कि नेक्स्ट 15 मिनट ये नीचे है और पहले 15 मिनट में ही ये नीचे आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक बाइंग मिल सकती है। ओके, निफ्टी में जैसे मैं सिनारियो बोला, अगर सीधा यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट है, 700 पॉइंट का गैप अप तो नहीं होगा, 400 पॉइंट का, सॉरी, बाई चांस हो जाता है तो सेल करेंगे, या फिर दिन भर कभी भी यहाँ पे पहुंचता है तो हम सेल करेंगे। स्पेशली आफ्टर 230 अगर बैंक निफ्टी ये जोन के आसपास है तो आप एक सेल ले सकते हो, एंड दैट सेल कैन कंटिन्यू ऑन ट्यूसडे पॉसिबली। ओके, बाकी एक सिनारियो हम देखेंगे मार्केट का गैप डाउन होने का। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो ये हमारी जोन है विच इज कोइंसाइडिंग ऑफ कोर्स विद आवर प्रीवियस डेली लो के आसपास। ये जो हमारी, ये हो गया हमारी बाई जोन, ये थोड़ी सी बड़ी है निफ्टी से, बट ये हमारी बाई जोन होनी चाहिए आइडियली। ओके, विच इज अराउंड, हम क्या बोले, 35,600 से 650, ये 50 पॉइंट्स का जोन है। तो 650 के आसपास से भी आप बाय कर सकते हो, बट बेटर बाइंग बॉटम ऑफ द जोन में है 600 के आसपास। सो 35,600 मतलब 200 पॉइंट अगर नीचे आता है तो आप एक ब्लाइंड बाई मंडे ले सकते हो। ये मिनिमम 300 पॉइंट का टारगेट आपको दे जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, 915 तक इजीली आ जाएगा, टारगेट दे जाएगा, ठीक है। सो मंडे गैप डाउन में बाय ऑन डिप्स 300 पॉइंट्स। मंडे गैप अप में फर्स्ट 5 मिनट्स रेड कैंडल सेल फॉर 100 पॉइंट्स, देन गो फॉर बाय। मार्केट अगर फर्स्ट 10 मिनट्स में नीचे नहीं आता है, एंड इफ इट इज गैपिंग ओपन हियर, go for a 200 points buying, then go for a 150 points sell, continue that sell on Tuesday. That's how we are going to trade. Thank you very much, good night, जय माता दी, बाकी लाइव में मिलते हैं।